Hello, everyone. It's Sanim, and welcome to What's the Tea with Arif and Imane. We are here for our weekend edition again, and I'm just waiting for my co-host Imane to join us with some fun conversation. All right, there we go. Hi guys, hello, welcome back to What's Tea. Hi, Imane. How are you this morning? I'm good. How are I'm very you? good. Thank you so much. So I'm again very much looking So, forward to our conversation. okay guys, तो जैसा कि हमारा जो कल का टॉपिक था, it was really thought provoking कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जो पेरेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते अगर हम ईस्ट की बात करें स्पेशली लाइक वो कहते हैं उनका जो ज्यादा फोकस होता है वो स्टडीज पे होता है ठीक है और अगर कोई खेल रहा है तो उसको वो कह रहे होते हैं कि भाई क्या तुम कब से क्रिकेट खेलने लगे हो क्या तुम बैडमिंटन खेलने लगे हो जाके पढ़ाई करो भाई तो आज हम ये बात करने लगे हैं कि स्पोर्ट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ मतलब आज हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारे कल्चर्स में ईस्ट में एंड वेस्ट में So in this episode, we'll delve into the diverse ways parents support their children, athletic pursuits around the world, from the enthusiastic soccer moms in the West to the passionate sports dads in other regions. So parental involvement जो है वो बहुत एक important जो role है वो play करती है youth sports में. तो क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब? यार ये आपने क्या सुबह सुबह टॉपिक छेड़ दिया कि क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू मी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय सन रायान बिकॉज एक्चुअली इट्स वेरी रेलेवेंट बिकॉज लास्ट नाइट हम उसी ही हाई स्कूल पे थे at 7 p.m. where there were dozens of parents who were supporting other kids like I was supporting Ryan for his accomplishment in squash. So basically, a whole Saturday night was dedicated by a school and by all the parents of the kids who were there for their kids about sport. So it's very timely that we're talking about this. तो तुमने जो पाकिस्तान में और ईस्ट की बात की लाहौर की बात की when I was growing up इमाने I was one of the most enthusiastic sportsmen and always thought and imagined that, one of the careers I could pursue would be athletics. But unfortunately, it never happened for some of the reasons we'll talk about today. लेकिन मेरी जो सबसे कहना चाहिए जो लविंग और फॉन्ड मेमोरीज और मेरी सबसे ज्यादा जो स्केरी जिनसे मुझे पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी शायद थोड़ा सा हो वो मेमोरीज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स हैं तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल मैं तो बता ही सकता कि कितना कॉमनली ये होता था और जिससे मेरी अभी भी रूह काम जाती है कि आप घर गए हो और आई वॉज अ वेरी गुड किड इन पढ़ाई राइट सो आई वॉज वेरी फॉर्मल तो मैं जैसे स्कूल जैसे घर जाता था मैं अपना फौरन अच्छे बच्चों की तरह बस्ता फेंक के सो गया उठ के खाना खाया और राइट पे मैंने अपना होमवर्क निकाल के ना माने विद इन अ फ्यू मिनट्स और एन आवर आई वाज डन विद द होमवर्क एंड मैंने कहा चलो जी रेडी अब क्रिकेट का टाइम है एंड आई वाज ऑलवेज द वन हु वुड जस्ट गो एंड बच्चों को इकट्ठा करना तो मैंने अपना बैट बॉल पकड़ा हुआ मैं चुप करके निकलने लगा रहा हूँ और उधर से आवाज आई छोटे किथे जा रहे हैं that was my nana and like oh my god how did he know that I was leaving the house छोटे फौरन फौरन हिसाब की किताब लेके आ जा इधर and then he would call me and have me open my हिसाब की और मैथ की book and then he would tell me जल्दी जल्दी 3 नंबरियां करना नंबरियां used to be one exercise they used to be like 15 questions in one exercise so basically he would tell me finish this 45 questions before you leave this house and I cannot even tell you how many times me holding a bat or a ball in my hand provoked this sense of anxiety among my parents and grandparents and then they would totally squash all my program to go play cricket or be part of sport and put me to work doing my work which I already had done for the day right so unfortunately जैसे ही हम स्पोर्ट्स की बात करते थे हमारे मुल्क में उस टाइम पे तो हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाते कि ये बच्चा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है और इसको पढ़ना चाहिए क्या करेगा बड़े होके so just want to kind of share that because it's still a PTSD kind of a thought in my mind. Yeah. So reflecting on your childhood, how did your parents, मतलब आपके पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड था आपकी जो पार्टिसिपेशन थी स्पोर्ट्स में मतलब were they supportive, indifferent or overly critical? I think एक पूरा आई डोंट नो मेरे मैं अपने पेरेंट्स को ज्यादा उसका क्रेडिट या ब्लेम किसी बात का दूंगा आई थिंक हमारा जो कल्चर वगैरह था वो यही था आई वाज वेरी प्रो पढ़ाई राइट आई मीन आई थिंक बिकॉज पाकिस्तान में सर्वाइवल
was the issue when I was growing up, right? Parents wanted to make sure कि उनके बच्चे जो है ना पीछे ना रह जाएं, they have opportunities to be successful, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और उनके जहन में ये स्पोर्ट्स एक बैरियर होता था कि ये बच्चा हमारा गली में जाके गली वाला लड़का ना बन जाए और बस अपनी सारी जिंदगी जाया ना कर दे, वहां पे पढ़ाई ना करे, राइट, आवारा ना हो जाए, राइट. दोज वर द कॉमन थिंग्स, बिकॉज जब भी आप पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का सोचते थे, कहाँ पे आपने स्पोर्ट्स खेलनी होती थी? कोई कॉम्प्लेक्सेस तो थे नहीं. इट वाज ऑल गली मोहल्ला, और गली मोहल्ले में बच्चे खराब भी होते थे इन द माइंड्स ऑफ मॉम्स, राइट. तो स्पोर्ट्स को और स्पॉइल होने को एक बड़ा दे दिया गया था, राइट, इनके माइंड में, हमारे पेरेंट्स की वो बात थी. तो इट वाजंट माय पेरेंट्स, इट वाज इन जनरल द, आई थिंक, कंसेंसस एंड अ मिसपरसेप्शन कि साडा मुंडा जेड़ा गली च जाके खेलना शुरू होया नहीं तो वो खराब होया नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हुई नहीं. लाइक दैट्स व्हाट्स अनफॉर्चुनेट वाज. सो it was always a barrier and a struggle. लेकिन ये है कि in my case, because I was really good in my studies and I was very good at रट्टाफिकेशन. तो मैं 5 मिनट में रट्टा मार के अपने सब्जेक्ट को, अपनी माँ को कन्विंस करके मैं तो निकल जाता क्रिकेट खेलने के लिए. बट really it was very hard to get support for anyone about sports at that age, because again खेलते आप बाहर थे, बाहर सिक्योरिटी भी नहीं होती थी, अंधेरा हो जाता था, बच्चे जख्मी हो जाते थे. So there were just so many reasons our poor parents really could not give us the support we actually deserved and required for us to be really good at what we were playing, you know. So let me ask you, like, has anything changed? Like, you were again, just a few years ago, तुम्हारी भी ये एज थी, you were a teenager, तो क्या तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे? अच्छा, अगर मैं अपने घर की बात बताऊं तो इसमें लाइक जो मेरे फादर हैं, मतलब उनको स्पोर्ट्स से प्यार था, और अभी भी हम उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि भी मुझे तो बहुत शौक था कि मेरे बच्चे जाके खेलें, लेकिन मेरी जो जनरेशन है, जो ये बच्चे हैं, ये माशाल्लाह से बाहर निकलते ही नहीं, मतलब पढ़ाई या जो भी है इन चीजों को साइड पे. मेरे फादर को खुद शौक था कि ये स्पोर्ट्स खेले, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि पता नहीं हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं रहा उन चीजों में. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अब वो इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है ना. हमें बाहर सड़कों पे लोग खेलते हुए ज्यादा नजर आते हैं. पहले तो ऐसा था कि हम खुद भी सड़कों पे निकल जाते थे, एंड जो गर्ल्स जिनको परमिशन नहीं मिलती थी बाहर आने की, वो भी हमें देख के आ जाती थी. लेकिन अब कुछ साल ऐसे हो गए हैं कि हमारा इंटरेस्ट बहुत कम होता जा रहा है स्पोर्ट्स की तरफ, चाहे वो क्रिकेट है, बैडमिंटन है. आई लव बैडमिंटन, आई लव टू प्ले क्रिकेट, लेकिन अब जो है मेरा इंटरेस्ट बहुत पता नहीं कहाँ चला गया. तो आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट मुझे लगता है शायद अब हमारा सोशल मीडिया हमें या फिर जो हमारी नेशनल टीम्स हैं वो हमें इस तरह से दिखा रही हैं कि वो लूज कर जाती है, तो हमारा इंटरेस्ट भी वहां पे खत्म हो जाता है, आई गेस. यार, let me ask you this again. Okay, do you guys have actively playing Jahangir Khan? Do you have an actively playing Jansher Khan right now? Do you get to see the stories from Imran Khan and Wasim Akram right live in front of you? You do not, right? I mean, तुम लोगों के पास अनफॉर्चुनेटली रोल मॉडल्स ही नहीं रहे, क्योंकि हमारी जब 80s और 90s में हम जब ग्रो कर रहे थे, माने हमारे पास इतने जबरदस्त एथलीट्स थे, जिसमें इवन बॉक्सिंग में पाकिस्तान वाज, आई थिंक, अ गोल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स. उसके बाद स्नूकर में भी वर्ल्ड द वर्ल्ड चैंपियन. हमने हॉकी टीम को यार हमने जो है वर्ल्ड कप जीते देखा लाहौर के अंदर, राइट. हमने इमरान खान को वर्ल्ड कप जीते हुए देखा. Jahangir Khan was a champion for 9 years. He was unbeatable for like 500 squash matches in a row. So those were the kind of things we were actually being inspired day in day out. Unfortunately, तुम्हारे पास social media के जो है icons आ गए हैं, right? Again, you kids, children, people who are young, and everybody else even, always needs an inspiration. और वो inspiration जहाँ से आएगी आप उसी तरफ attract होगे, right? अब इंस्पिरेशन आपको सोशल मीडिया से मिल रही है, आर्ट से मिल रही है, सो आई थिंक वो जरूरत भी नहीं. और फर्ज करो यार, अगर आपके पास जहांगीर खान और जानशेर और इमरान खान होते भी अभी, आप लोगों ने बाहर जाके खेलना कहाँ पे था? मैं अब पाकिस्तान आता हूँ, मैं हैरान हूँ, आई एम स्टन्ड कि देयर आर नो गुड ग्राउंड्स फॉर एनीबडी टू प्ले एनीथिंग. कोई जगह है ही नहीं. कराची खास तौर पे, देयर आर नो फील्ड्स, देयर इज नो ग्रास. लाइक वेयर आर पीपल गोइंग टू प्ले हॉकी, सॉकर और क्रिकेट, राइट? सो अनफॉर्चुनेटली no inspiration available, unfortunately no infrastructure available for you guys, and unfortunately, there's no infrastructure for your schools, जिसकी तरफ हम अभी बात करेंगे, जैसे कि आपके schools और colleges आपको क्या infrastructure दे रहे हैं.
हमारे इंस्टीट्यूशंस बेसिकली इस पे फोकस ही नहीं करते। लाइक जैसे यूएस में इस तरह होता है कि बैलेंस वो करके चलते हैं, लेकिन हमारा ये कि जैसे एक दिन साल में एक दिन होगा जो कहेंगे आपका स्पोर्ट्स पे, ठीक है, उस दिन कोई क्लास नहीं होगी एंड उसके लिए आपको वो प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये क्या मतलब फायदा है आपको? ठीक है, आपको 2-3 दिन पहले प्रैक्टिस कराना शुरू कर देंगे, आपके नेम्स एंटर कर लेंगे कि आपने कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करना है। तो वो एक स्पोर्ट्स डे का नाम देके पूरे साल में एक दिन, तो वो उसको स्पोर्ट्स डे कह दिया जाता है। लेकिन मतलब इसको स्कूल्स में भी नहीं सीरियस लिया जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स को हमारे स्कूल सूट के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा है ही नहीं जो आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताए या आपको दिखाए कि भाई गो एंड प्ले। मतलब इस तरह से अब गेम स्कूल में भी होते हुए हम नहीं देख रहे। यार okay, now I am going to give you some comparisons के लुईविल में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे, और उससे पहले मैं इंडियानापोलिस में और फिलाडेल्फिया में, जिन शहरों में मैं रहा हूँ, रिगार्डलेस यूएस में आप जिस मर्जी शहर में रहो, लेट मी शो यू अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कि यहाँ पे स्पोर्ट्स से कैसे डील किया जाता है. Why these countries, why US, a country like US, always wins the highest number of gold medals and medals in general in Olympics. उसकी वजह कि जैसे तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की माने कि हमारे स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स डे को रेलीगेट कर दिया गया है कि 365 में से एक दिन जो है वो जो है ना स्पोर्ट्स के ऊपर कर दिया जाएगा, राइट. और वो दिन भी मुझे भी याद है कि हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स इवेंट जब होता था कैथीड्रल हाई स्कूल में, और फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में जब मैं पढ़ा था, वहां भी जो पूरा आपको एक दिन का स्पोर्ट्स का मिलता था ना, वो भी नजर हो जाता था पॉलिटिक्स ही. उसके अंदर होता था कि जनाब कौन सा सियासतदान आ रहा है, उसने क्या स्पीच देनी है, और सारे स्पोर्ट्स बच्चे के बेचारे स्पोर्ट्स खेलने आए होते थे, वो इंतजार कर रहे होते थे जनाब कब मेहमान खसूसी साहब आएंगे, वो कब तकरीर करेंगे, तो कब स्पोर्ट्स स्टार्ट होगी. तो इट इज रियली अ हैसल इवन दैट वन डे वो भी आपको मिलता है. और दूसरी बात यह है कि जब आप किसी चीज को एक सेपरेट कैटेगरी में करके उसका एक दिन बना देते हो ना, देन यू आर ऑटोमेटिकली टेलिंग एवरीबडी कि यू नो व्हाट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर डे टू डे, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर डे टू डे कल्चर. As opposed to that, in USA, in Louisville, these sports very subtly are part of your day to day every day. हर दिन जो है ना आपके क्लास के अंदर 5-6 बच्चे मिसिंग होंगे किसी भी क्लास में, because they are allowed to, because they actually going and playing matches somewhere. So it is very well accepted that on any given day in any school there will be a few kids and a couple teachers missing because either they are on a tournament, they are playing outside on a very important match, और हर दिन उन न्यूज को सेलिब्रेट किया जाता है और डिस्कस और शेयर किया जाता है पूरी क्लास में, हे हमारे स्कूल में जो है ना आज की हमारी टीम जो है ना वो जीत गई. और ऑलमोस्ट वीक में 2-3 दिन ईमाने ऐसे होते हैं कि मेरा बच्चे जब स्कूल में होते थे, दे वर एक्चुअली ट्रैवलिंग टू अ मैच जो कि शाम को 6 बजे के बाद आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और पूरी पूरी स्कूल्स जाते हैं, उनकी फैमिलीज जाती हैं. क्या एनवायरनमेंट वहां पे होता है, आप अपने सपोर्ट करें तो स्कूल को. एवरी वीक दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन. सो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है, इट इज रियली पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ द डे टू डे लिविंग. इट इज नॉट अनाउंस्ड एज वन सेलिब्रेटरी डे इन अ ईयर बेसिकली. सो दैट इज प्रॉब्ली द की डिफरेंस. Okay, if we talk about modern day parenting, with the rise of competitive youth sports, do you think that today's parents are uh, more supportive than the previous generation? How has the shift impacted young athletes? मतलब अगर आपके ख्याल में ज्यादा हैं या कम, what do you think? Yeah, Mary thinking doesn't matter. I mean, I do not know what the realities are. I do not know what are the realities in Lahore, which is a so beloved city of mine. You can tell me, like, are you seeing any changes? Like, I hope changes are coming. I hope parents can learn from social media, okay, how people in the West are supporting their kids and grandkids. ये सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं है. यहाँ पे जब क्रिकेट के यहाँ पे जब मैचेस वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आए होते हैं दूसरे शहरों से फ्लाइटें बुक करके. पीपल आर गेटिंग होटल रूम्स. ऑफ कोर्स पैसा भी चाहिए, इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हैं, राइट. हाउ मेनी पीपल इन पाकिस्तान प्रॉब्ली कैन अफोर्ड दैट, नॉट मेनी. बट अगेन मेंटालिटी से आप सपोर्ट कर सकते हो. यू डोंट नीड पैसा एवरी सिंगल टाइम टू सपोर्ट फॉर एवरीथिंग. You can tell me more कि पाकिस्तान में वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा. I bet it is changing because people have better examples to look to. People are getting inspiration through social media from other countries, right? So I can only hope and pray कि people can get more supportive, because Imane, sports have a huge role to play in character building. Talking about dedication, planning, teamwork, strategic growth, right? Conversation, communication, conflict management. I cannot name how many aspects of your day to day can be improved by sports. I can only hope and pray that it is changing. Okay,
before wrapping up, I want to ask what strategies can parents simplify to ensure that they're positively contributing to their child's athletic experience without causing under stress? I only have one strategy, Mane, and that is हमारे पेरेंट्स जो अपने आप को 40 और 50 और 35 और 40 और 50 की एज में बूढ़ा कहना शुरू कर देते हैं, जो एज को इतना बड़ा फैक्टर समझते हैं, when age is nothing. And by the way, I'm a geriatrician, which means I actually am a physician who's an expert in aging. I'm just telling you, we have to think about aging as a strength, not as a weakness. And aging has nothing to do with you stopping to being engaged and playing sports yourself. So the one big thing our parents can do, Imane, is they can themselves become active in sports and become more physical themselves. And then they can start playing with their kids. And that is when they will realize the value of it. मैं, मेरा बेटा, मेरी बीवी और मेरे दोनों बेटे रात को 1 घंटा जो है रात को स्क्वाश खेलते रहे आपस में. Even though my wife did not know how to play, my other son didn't know how to play, we had such a laugh in the squash court, made such a great fool of ourselves. We got together, we bonded, and we realized the value of sports together. So to me, every single parent listening, you have to engage in sports yourself before you can do anything for your kid and your child. Yeah, if I talk about my sister, वो रेगुलरली बैडमिंटन खेलती है. लाइक वो यूनिवर्सिटी में अभी सेकंड सेमेस्टर उसका कल से स्टार्ट हो रहा है, बट वो बैलेंस रखती है इस चीज के दरमियान में. शी प्लेज बैडमिंटन, ठीक है, और वो अपनी स्टडीज को और स्पोर्ट्स के दरमियान बैलेंस रखती है, एंड शी प्लेज सो वेल. तो मैं भी ये चाहती थी कि मैं खेलूं, लेकिन पता नहीं मैं इतनी एक्टिव क्यों नहीं हूँ, बट फिर से मैं इसको स्टार्ट करूंगी, एंड मैं बना रही हूँ अपना माइंड कि मैंने इसको साथ करना है. तुम्हारे कान तो मैं खींचूंगा अगर तुमने स्पोर्ट्स पे ज्यादा फोकस किया. और मुझे पता है कि आप सारा दिन भागते रहते हैं. आई मीन आपकी मदर हमेशा बताती है आप बैठते नहीं है. वो कहते हैं पता नहीं कैसे आप पॉडकास्ट में बैठ जाते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि आप हर टाइम रनिंग एंड गेम्स में आप लोग बहुत एक्टिव हैं. दैट्स सो गुड, माशाल्लाह. सो मैंने सुना कि सुपर बोल चल रहा है, जाने से पहले उसके बारे में भी कुछ बता दें. थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप. आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूअर्स जो है हमारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स में देखना सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम नो कि टुडे इज द बिगेस्ट sporting day in USA because today जो यहाँ पे sport होती है जिसको football कहते हैं, which is not football like soccer, but it is different football जो कि हाथ से खेली जाती है US में. I will have people kind of Google it. But today is football, which is the most viewed and played sport in USA. उसका final है आज, और उस final को जो नाम दिया गया है वो Super Bowl कहते हैं. It's a very long tradition. I think today is the 60th or 59th Super Bowl of the country. और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी चलेगी, ट्रेड होगा, अनबिलीवेबल. टीवी पे एड्स आएंगे, इट विल बी अ फन डे. लोग पिज्जा और चिकन विंग्स ऑर्डर करेंगे घरों पे. इट्स अ ह्यूज डे टुडे. और शाम को 6 PM ईस्टर्न टाइम से लेके 11 PM तक दुनिया रुक जाएगी. इट विल बी ऑल अबाउट फुटबॉल ऑन द सुपर बोल टुनाइट. All right. So thank you everyone for joining us on this insightful discussion. We'll see you in the next episode of What's the Tea. I hope आपने enjoy किया होगा, and please make sure कि आप लोग sports में fully participate करें. और सबसे पहले तो मैं make sure करती हूँ. और please subscribe to Imane's channel on YouTube. Okay. So welcome. Yeah, guys. And thank you for joining to What's the Tea. Until the next weekend. Thank you so much. See you guys. Bye bye.